Dear students, very good morning to all you. I'm Dr. Ravind Prasai, Associate Professor of Mathematics in Engineering Science Humanity Department. I welcome to you on our this 11th lecture, unit number 3. After 8 minutes, we'll start our session. 2017. $15, $14, $49. ज्वाइन करने के बाद आप लोग अपना अनम्यूट कर लीजिए माइक। फिर मैं जब सबका अटेंडेंस हो जाएगा तब उसके बाद मैं अनम्यूट करूंगा। वो आ रहा है। कैमरा बंद कर છે ને 50, 54, 52, 4, 22, 38, 21, 48, Shiva Tiwari, 46, Shekhar Chauhan, 18, $29, 33, and Sachin Pandey, 29, 16, 19, 1, 19, Vyas,
Sir, mine Rohit Lonare. Of course, I have taken your attendance. Roll number 31. And 26. 26 हो गया. Sumit, 45. 50. Sir, mine Rohit Lonare. रोहित हो गया बेटे तुम्हारा. Pradeep Jadhav. Tell me your roll number, Pradeep. Write your roll number, Pradeep. हेलो हाँ बोलो बेटा प्रदीप. प्रदीप नाम का कोई स्टूडेंट नहीं है. कुणाल नहीं सर कुणाल जायसवाल 31 31 हो गया बेटे. प्रदीप करके कौन स्टूडेंट है अपनी क्लास में? कोई भी स्टूडेंट नहीं है. यदि नहीं है न्यू कमर्स है तो मेरे को डिटेल्स दीजिए. ई कैंपस पे मैसेज करिए. विजय चौहान 53. अभी आपके क्लास में दो लोग ऐड हुए हैं, एक सचिन पांडे और एक रोहित लोनारे. इसके अलावा यदि कोई ऐड हो तो मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे HOD से परमिशन लेके. नंबर 57. बस 1 मिनट के बाद हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे. Of course, Sachin Pandey, of course. Kushi, roll number 28. Okay, my dear students, because the process is slightly lengthy, so that now we have to start our today's session. I am Dr. Ravindra Parsai, Associate Professor of Mathematics in Engineering Science Humanity Department at Chamini Devi Group of Institution, Indore. I welcome to all of you to our this 11th lecture based on how can we solve an Poisson equation like to the Laplace equation. Yesterday we have seen Pradeep Jadhav. Yesterday we have seen the finite difference method for solving the first category of elliptic equation. One of them is Laplace and second one is Poisson. Tell me, Pradeep. Pradeep Jadhav, I think so. I asked me a question from Pradeep Jadhav after some time. Let me start this session of today at 11th lecture. I have been explained the previous class the method. Now I recall once again the method for solving the Poisson equation. I explain you very well what to mean by Poisson equation. Poisson equation is defined with the help of Laplace equation. When in the Laplace equation, the constant term is non-zero, then it is called the Poisson equation. That is any function of independent variable x and y.
So this equation arises when we deal problems in magnetism, electricity, fluid mechanics. ये आप लोग इन वेरियस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगी ये इक्वेशंस, जिसमें आपको इस बात को बहुत केयरफुल रहना है। इसलिए आपको आपके सब्जेक्ट में इस मेथड की रिक्वायरमेंट होगी जब भी आपके पास ये पॉइसन इक्वेशन देखने को आपको मिलेगी और उसका आपको सोल्यूशन निकालना होगा। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल u की वैल्यू xy के टर्म्स में, कोई भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में निकालना होगी, तब उस केस में आप लोग इस टाइप की न्यूमेरिकल टेक्निक्स को अडॉप्ट करेंगे। सो द इक्वेशन 1 can be solved numerically at the interior grid points or the mesh points of a square network when the boundary values are known. तो यहाँ पर भी आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी, जैसे आपको पहले कैटेगरी में बाउंड्री कंडीशन दी होती, इसी तरह से यहाँ पर भी आपको बाउंड्री कंडीशन दी होगी। रोल नंबर 48 already joined. Okay. So for this, replace the derivative in equation number 1 by the difference quotient by taking x equal to IH and y equal to JK, that is h equal to k. स्क्वायर होता है, इसका मतलब लेंथ बराबर ब्रेड्थ होता है, जो हमने कल की क्लास में लाप्लास इक्वेशन में भी यही केस लिया था। कृष्णकांत यादव, so all of you know the value of the finite difference, तो इसमें h equal to k की वैल्यू रखना है। ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू मैंने आपको कल के प्रॉब्लम में बताया था लाप्लास इक्वेशन में, वही वाली वैल्यू यहाँ पर भी यूज होगी, क्योंकि पहली टर्म में आपका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x मतलब h और y मतलब k। यहाँ पर चूंकि k की वैल्यू h हो गई है, h बराबर k मान लिया है, इसलिए आपके पास ये हो गया। और आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, तो f ऑफ एक्स वाई इसका मतलब x की जगह आपको IH रखना है और y की जगह JK रखना है। k इक्वल टू h है, इसलिए आपने यहाँ पर दोनों जगह h रख दिया है। आप k के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, आप h के लिए भी कर सकते हैं, कोई भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है इसके रीजन के अलोंग सॉल्व होगा जो आपको बाउंड्री कंडीशन दी होगी। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, सिंपलीफाई कीजिए, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके बाद इस इक्वेशन से UIJ की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमने नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रखी है। स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी साथ साथ में लेते जाइए। आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, आप बोलना नहीं पड़े आपको। इस तरह का आपके पास जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। UI minus 1 of j, UI plus 1 of j plus UI of j minus 1 plus UI of j plus 1 minus 4 of UIJ equal to h स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम लिया तो h स्क्वायर आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर इंटू एफ ऑफ IH इंटू JH आपको मिल जाएगा। So which is called a standard 5-point formula for solving the Poisson equation. By applying this formula number 2 at each interior mesh point, we arrive at a linear equation in the pivot values or a nodal values UIJ. So this equation can be solved by direct elimination method or by Gauss-Seidel method. कोई भी मेथड आप दोनों में से लगा सकते हैं। कल की क्लास में हमने गॉस-सीडेल की मेथड लगाई थी, आज की क्लास में हम आपको एलिमिनेशन की मेथड लगा के इस प्रॉब्लम को आपके सामने नेक्स्ट में समझाने जा रहे हैं। So the above method is well explained by the following example, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। ये रहा आप हमारे सभी के सामने एग्जाम्पल, और ये आपके सामने
दी हुई बाउंड्री कंडीशन है, हमारा x का डोमेन 0 से 1 है और y का डोमेन 0 से 1 है। ऑब्वियसली x और y की वैल्यू सेम है, तो ऑब्वियसली ये बाउंड्री आपकी स्क्वायर है। सो द गिवन बाउंड्री वैल्यूज आर इस प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन और बाउंड्री कंडीशन को हम सबसे पहले लिखते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम करने सॉल्व करने का ये पहला स्टेप होता है। अब ये जो बाउंड्री कंडीशन आपके सामने मेंशन की है, इसको हमें डायग्राम में शो करना है। फिर हम डायग्राम को देख के अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को, जो अभी आपको फॉर्मूला समझाया है, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला। ये स्लाइड कंप्लीट हो गई। ओके, आर्ची का भी हुआ है अटेंडेंस, रोहित लोनानी का भी हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं, ये लग गया होगा सभी ने स्क्रीनशॉट इसका। ये रहा आपके सामने टोटल लिमिट आपके सामने दे रखी है। बोलिए मुकेश, कहिए मुकेश। पीछे करूं स्लाइड? मुकेश कुछ बोलना चाह रहे हो बेटे? म्यूट करो अपने माइक को, बोलो क्या बोल रहे हो बेटे। मुकेश, मुकेश टेल मी, वेयर इज मुकेश? बेटा आपने एंड्रेस किया था, कोई इशू था तुमको? चलिए आ रहे हैं हम लोग अपने स्टेप की तरफ। हमको कॉमन डिफरेंस x की डायरेक्शन में 1/3 और y के डायरेक्शन में भी 1/3 है, तो हम लोग अपनी वैल्यूज में यूज करेंगे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका u ऑफ 0 0, ओरिजिन पे इसको फिक्स किया है। फिर इसके बाद h 1/3, इसमें 1/3 कॉमन डिफरेंस जोड़ लेंगे जब तक कि 1 नहीं आता। तो x की मैक्सिमम लिमिट आपके पास 1 है और इधर y की भी मैक्सिमम लिमिट 1 है। और ये आपके सामने एक स्क्वायर बाउंड्री दे रखी है, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आपके सामने क्या स्क्वायर अरेंजमेंट है। और आपके पास ये जो बाउंड्री वैल्यू दे रखी है, इनको हमने यहाँ पर इस तरह सिंबलाइज किया है। u ऑफ 3 का मतलब 1, ये एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, तो ऐसे 3 बॉक्स हो गए। और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर 0 होता है, इसलिए इसके सफिक्स का नॉमिनल में u3 ऑफ 0 होगा। फिर हम एक एक बॉक्स से आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक लाइन से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसको मान लिया है y इक्वल टू 1 है, दैट इज 1, तो 3,1, यहाँ पर 3,2, ये 3,3। और फिर इसी तरह से हम लोग इस दिशा में y एक्सिस पर वैल्यूज आपको 0 दे रखी है, जो आपने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। इसी तरह से हमने इसका नॉमिनेशन किया है। u00 पे ओरिजिन पे वैल्यू 0 है, फिर 0 1 0 का मतलब पहला x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे 0 होता है, इसलिए यहाँ पर सिंबल में हमने x कोऑर्डिनेट को 0 रखा है और y कोऑर्डिनेट आपका चूंकि ओरिजिन पे है तो 0 होता है। फिर x से आगे बढ़ता है, इक्वी डिस्टेंस है 1 2 3। सेम तरीके से हम लोग यहाँ पर इनका नॉमिनेशन करेंगे। ये नॉमिनेशन होने के बाद आप फिर इस साइड की बाउंड्री वैल्यू का नॉमिनेशन करेंगे। आपको मालूम है कि ये y एक्सिस पर ये पॉइंट है तो x 0 होता है, तो ये 0,3 मैक्सिमम 1 2 3, y की वैल्यू 3 है, तो ये आपके पास ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद 1,3, और क्योंकि x की वैल्यू आपने 1 बॉक्स से आगे बढ़ी है, इस पॉइंट के लिए 1, x की वैल्यू 1, फिर x की वैल्यू 2 और यहाँ पर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू भी 3 है, तो u ऑफ 3,3 है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि जो भी हमारे पास कंडीशन दे रखी है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद फिर हमारा टारगेट होगा कि जो भी आपके पास ये इंटरनल जो भी वैल्यूज हैं, इनको अपन बोलते हैं इंटरनल मैच पॉइंट। मींस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, मतलब हमें इस पॉइंट पर इस प्रॉब्लम का
पॉइसन इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, मतलब u1 की वैल्यू निकालना है, u2 की वैल्यू निकालना है, u3 की वैल्यू निकालना है, u4 की वैल्यू निकालना है, जिसको अपन ये नए सिंबल में भी आपके सामने डिनोट कर रखा है। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है तो इसे 1 और y की वैल्यू 1 और 2 करके 2 है तो u12 भी सिंबल में हम यूज कर सकते हैं। ये u22 है तो इसलिए सेकंड रो सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है। जैसे अपन मैट्रिक्स में अरेंजमेंट करते हैं उसी तरह से अरेंजमेंट किया है। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम है तो आपके सामने यहाँ पर चूंकि एक्स एक्सिस है तो ऊपर y 0 होता है इसलिए यहाँ पर 0 लिया है। देख लीजिए इस डायग्राम बनाने में ग्राफ में ये जो प्रॉब्लम आपका दिया था, पीछे जाते हैं हम पिछले स्लाइड की तरफ। ये था आपके सामने ये बाउंड्री कंडीशंस। आपको h और k की दोनों वैल्यू आपको 1/3 दी है। x की वैल्यू आपने ये लिए कॉमन डिफरेंस 1/3, h जैसा लिया वही k, क्योंकि h और k दोनों सेम है इसलिए यहाँ पर a की वैल्यू ले रखी है एग्जामिनर ने। k की वैल्यू यहाँ पर शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमें मालूम होता है कि पॉइसन इक्वेशन में स्क्वायर बाउंड्री के अलावा निकालना होता है, h और k दोनों सेम होते हैं तो या तो h के फॉर्म में शो करेगा या k के फॉर्म में शो करेगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें पहले ये वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो इसके लिए हमारे पास 5 पॉइंट फॉर्मूला में हमें अप्लाई करना होगा, जो आपको अभी फॉर्मूला दिया था अप्लाई करने का। इसको हम अपने स्टेप में लिखेंगे। पॉइसन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला आपके सामने ये है। इसमें आपका जो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है उसमें x की जगह IH रखना है और y की जगह JH रखना है। आपको फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी थी क्वेश्चन में, फिर से देखो क्वेश्चन की तरफ। ये दे रखी है -81xy, x का मतलब IH, y का मतलब JK, ओके, और k की वैल्यू h के बराबर है इसलिए हमने ये सब्स्टिट्यूशन रखा है। माइनस साइन 81 में कुछ भी चेंज नहीं होगा। h की वैल्यू भी आपके पास h और k दोनों सेम है और h की वैल्यू आपको दे रखी है 1/3 दे रखी है तो यहाँ पर h की वैल्यू रख दी है तो -81 इंटू 1/3 की पावर 4 इंटू i इंटू j। इस तरह से आपका ये स्टैंडर्ड 5 पॉइंट वाला अपडेट हो जाएगा इस बाउंड्री कंडीशन के लिए, इस प्रॉब्लम की बाउंड्री कंडीशन के करस्पॉन्डिंग। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्रॉस गुणा कर लीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे 3 की घात 4 से ये कट जाएगा और सिंप्लीफाई होगा तो ये -i आएगा। 3 की पावर 4 81 होता है तो 81 से 81 कट गया। इस तरह से ये सिंप्लीफाई होकर आपकी इक्वेशन आ जाएगी ui -1 ऑफ j, ui +1 ऑफ j, ui ऑफ j -1, ui ऑफ j +1 माइनस 4 ऑफ ui j इक्वल टू माइनस ऑफ i j। ये आपका इस प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग बाउंड्री कंडीशन को यूज करके आपका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बना है। अब हम एक एक पॉइंट के लिए कैलकुलेशन करेंगे, i और j की वैल्यू उस फॉर्मूले में देते जाएंगे। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम स्टेप बाय स्टेप अगली स्टेप में फुलफिल करेंगे। तो जैसे अपने को u1 निकालना, u1 निकालने का मतलब क्या है, u1 कब निकलेगा इस फॉर्मूले में, उसके बारे में आप सोचेंगे। i की वैल्यू 1 रखना पड़ेगी और j की वैल्यू आपको 2 रखना पड़ेगी। i की वैल्यू 1 क्योंकि u1 का मतलब है u12। आप ग्राफ की तरफ देखेंगे तो उससे भी आपको i j की वैल्यू आपका आइडिया हो जाएगा। फिर से जाते हैं ग्राफ की तरफ। u1 निकालना मतलब हमें i की वैल्यू 1 रखना है और j की वैल्यू 2 रखना है। इसलिए मैंने ग्राफ में आपको केवल u1 शो नहीं किया है, u1 के साथ में ये शो क्यों किया है उसका रीजन बेसिक यही है कि जब आप u2 निकाले जाएंगे तो आपसे मैं पूछूंगा कि बताओ i और j की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ पर ये देख के बताएंगे कि i की वैल्यू हमें 2 लेना पड़ेगी, j की वैल्यू 2 लेना पड़ेगी। और जब u3 निकालने जाएंगे
तो आप बताएंगे i की वैल्यू 1 रखेंगे, j की वैल्यू 1 रखेंगे। और जब u4 के लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो i की वैल्यू 2 रखेंगे और j की वैल्यू 1 रखेंगे। बहुत ही सीक्वेंस में बात को समझना जरूरी है, ठीक है। तो आ रहे हैं अब हम उस स्लाइड की तरफ जिसमें हम आपको इस फार्मूले को यूटिलाइज करना बता रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, वो तरकीब सिखा रहा हूं मैं। तो आपको मैंने u1 के लिए सिखाई है। रखिए बेटे, इस फॉर्मूला 1 में ये वैल्यू दे दीजिए, i को 1 दे दीजिए, j को 2 दे दीजिए। ये आपके सामने पहली इक्वेशन बनेगी इस सब्स्टिट्यूशन को करने के बाद। अब इसमें आपके पास बाउंड्री वैल्यूज ग्राफ में दे रखी है। u02 की वैल्यू आपके पास 0 दे रखी है। इसमें जो मान दिया हुआ है उसको रख देंगे। u22 की वैल्यू को अपन ने u2 माना है शॉर्टकट में, कुछ ये वैल्यू को u3 माना है, और आपके सामने माइनस ऑफ u12 को अपन ने u1 माना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद गिवन बाउंड्री कंडीशन को रखने के बाद मिलेगी आपकी ये पहली अलजेब्रिक इक्वेशन। इसको और सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का मतलब जो भी अननोन टर्म है उसको एक साथ लिख लीजिए, u1 की, u2 की, u3 की, और जो नॉन वैल्यू है उसको आपस में मिला लीजिए। तो ये 100 इधर आएगा तो हो जाएगा 100 माइनस में हो जाएगा, तो 100 माइनस का और 2 माइनस का कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा आपका। तो ये आपके सामने पहली लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगी u1, u2 और u3 में। इसी तरह से अपन दूसरी अलजेब्रिक इक्वेशन बनाएंगे। क्योंकि आपके पास 4 अननोन है तो आपके पास इस तरह की 4 अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगी। तो हम इस फॉर्मूले को दूसरे u2 के लिए यूज करना आपको मैंने बता दिया है ग्राफ से। उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप i की वैल्यू रखेंगे और j की वैल्यू रखेंगे। रखिए सभी लोग अपनी कॉपी में, नहीं तो माइंड में रख के u2 का कैलकुलेशन करिए सभी लोग। सिमिलरली फॉर u2 क्या पुट करने का बोला था मैंने, i की वैल्यू 2 रखना है, j की वैल्यू 2 रखो इस फॉर्मूला 1 में, और इसी तरह से सॉल्व करो। जो आपके पास वैल्यू नोन है उसकी वैल्यू सिंबलाइज करिए। इसी फॉर्मूले को दोबारा ऐसे 4 बार रिपीट करना है क्योंकि हमें 4 वैल्यू निकालना है। यदि 6 वैल्यू निकालना है तो इस फॉर्मूले को आप 6 टाइम यूज करेंगे। जितने अननोन्स होंगे उतनी बार ये फॉर्मूला नंबर 1 आपका अप्लाई होगा, जिसको स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला पॉइसन इक्वेशन के लिए बोलते हैं। ये आ गया आपके सामने, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दिया और इसको सॉल्व कर लिया। u1, u4 और u2 अननोन से, बाकी में सिंप्लीफिकेशन किया, 200 माइनस 200 और माइनस 4 आपका 204 हो जाएगा। ये आपकी दूसरी अलजेब्रिक इक्वेशन आ जाएगी। फिर आप तीसरी निकालेंगे तो उसके लिए आप u3 निकालेंगे। तो u3 को निकालने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, i की वैल्यू 1 रखना पड़ेगी, j की वैल्यू 1 रखना पड़ेगी। जो आपको यहाँ पर इस स्टेज पर सोचने में कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं पहले आपको वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया है, तभी आप इस चीज को सही कर पाएंगे, नहीं तो यहाँ पर आप मिस्टेक करेंगे। ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्व करने का आपको पॉइसन का यही रखना पड़ेगा। एम राइट श्रेयांश? अब मैं रुक रहा हूं। श्रेयांश, अजय लोधी? यस सर। यस सर। रखो बेटे, फॉर्मूला 1 में ये वैल्यू रखो। क्या मिलेगी पहली बार में इक्वेशन, ये होगी i और j 1 है तो बाहर में राइट हैंड साइड में -1 i इंटू j की वैल्यू है तो 1 इंटू 1 हो जाएगी। सिंप्लीफाई कीजिएगा। क्या सिंबल हमने u21 के लिए यूज किया है, क्या सिंबल हमने 12 के लिए यूज किया, और क्या वैल्यू आपके पास इसमें से नोन है जो आपको ग्राफ में बता रखी है। सेम तरकीब लगा रहे हैं हम, कोई डिफरेंट नहीं है अप्रोच। और सॉल्व करके जब तक सॉल्व नहीं हो जाता इस स्टेज तक हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये आपके सामने तीसरी लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि 4 अननोन से u1, u2, u3, u4, तो हमें 4 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है।
तो हमें इस फॉर्मूले को 4 बार ऑब्वियसली यूज करना होगा। आई थिंक सो वो जो चौथा है उसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया होगा। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट इस स्लाइड का? लेते जाइए पैरेलल में और समझते भी जाइए। टाइम हमारा अपडेट कर दिया है मैंने। बस ये और करना है, इस फॉर्मूले को एक बार और अप्लाई करना है और फिर इसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला कैटेगरी का प्रॉब्लम कंप्लीट होगा। फिर हम दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी पढ़ेंगे। अभी हमारे पास 2 और कैटेगरी इस चैप्टर में बची है। 2 और डिफरेंट टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालने की मेथड समझना है। ये आपके सामने U4 की वैल्यू के लिए आपको बताया था मैंने, I की वैल्यू 2 रखना पड़ेगी और J की वैल्यू 1 रखना पड़ेगी। मतलब इसको अपन ने U21 से डिनोट किया हुआ है, तो यहाँ पर जहां पर U21 है उसकी जगह U4 आ जाएगा। तो वही किया अपन ने पहले जैसा, इसको फार्मूले को, उस फार्मूले 1 को रिपीट किया, सब्स्टिट्यूशन किया और सिंप्लीफाई किया। इस तरह से आपके पास ये 4 अलजेब्रिक इक्वेशन आ गई, जिसको आप कोई सी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो 7th 8th क्लास की मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने बहुत छोटी क्लास से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, क्योंकि अभी आपके इस सेकेंड ईयर में कुछ ऐसे बच्चे ज्वाइन करते हैं जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड डाउन होता है। इसलिए मैं उस लेवल से जाके आपको प्रॉब्लम रिवाइज कर रहा हूं। तो हमने वही किया है, हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 1। इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन 2 अननोन्स में सेपरेट हो जाएगी और फिर इस वैल्यू को हम नेक्स्ट इक्वेशन में यूज करके आपकी जो 4 अननोन की इक्वेशन है वो 3 अननोन में बदल जाएगी। हेंस इक्वेशन नंबर 2nd and 3rd आपकी हो जाएगी। सचिन पांडे, एम आई राइट? एंड रोहित लुराने, एम आई राइट? 4 इक्वेशन है आपके पास। आपने क्या किया बेटे, चौथी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को घटा दिया। यह कैलकुलेशन आप सभी लोग करके देखिए। मुकेश तुम्हारा हो गया है बेटे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से सॉल्व करने के बाद आपके पास हेंस फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, ये जो इक्वेशन 2 और 3 थी उसमें u इक्वल टू 4 रख दीजिए। हमने ये जो वैल्यू को रख दिया है। तो इस तरह से आपके पास ये जो इक्वेशन है, एक आ गई आपकी U1 U2 में, दूसरी आ गई U1 U3 में। नाउ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5th के साथ जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने से हमारे पास एक इक्वेशन और मिल जाएगी U1 और U3 में। अभी हम ये दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व नहीं कर सकते, हम कोई भी एक अननोन की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि यदि आप इन दोनों को साथ में लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसी तरह की एक इनइक्वालिटी आ जाएगी, U2 इक्वल टू कुछ U3 के फॉर्म में आ जाएगी। तो इसलिए हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 को 4 से 1 इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया और उसको 5th इक्वेशन के साथ जोड़ दिया। तो इस तरह से हमारे पास जैसे एक इक्वेशन U1 और U3 में, इसी तरह से एक और इक्वेशन U1 और U3 में आ जाएगी। अब आप 4, 6 और 7th इक्वेशन को आपस में एलिमिनेशन से या तो U1 के लिए या U3 के लिए आपस में सॉल्व कर लीजिए। देखिए बहुत आसान दिख रहा है सॉल्व करना। ये दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए तो U3 की टर्म कट जाएगी, आपको एक मान मिल जाएगा U1 का। यदि U1 का मान मिल गया तो इससे U4 का मान भी अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि U1 की वैल्यू U4 के बराबर है। और जब आपके पास 3 अननोन का मान मिल जाएगा तो आप इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो आपके पास
फोर्थ अननोन का मान अपने आप मिल जाएगा। तो हम अगले स्लाइड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो मैंने अभी आपको समझाया उसी को नेक्स्ट स्लाइड में वही देख लीजिए। आपके सामने जो मैंने बोला वही लिख दिया और वही कर दिया। करने के बाद हमको जो रिजल्ट मिल रहा है वो आ रहा है -12 ऑफ u1 इक्वल टू -613। यहां से आप u1 की वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मली डिवाइड भी कर सकते हैं। क्योंकि ये वैल्यू u1 की और u4 दोनों बराबर है, तो यही वैल्यू u4 की होगी। आपके पास दो वैल्यू आपकी न्यूमेरिकली आ गई है, मतलब आपका जो पॉइसन इक्वेशन है उसके दो सॉल्यूशन आपके आ गए हैं। अब हमारे पास दो और बाउंड्री पॉइंट्स पर इस सॉल्यूशन निकालना है, u2 और u3 की वैल्यू निकालना है। तो इन वैल्यू को आप प्रीवियस इक्वेशन में यूज कर लीजिए, जिसमें भी आपको मर्जी लगे उसमें आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन अडॉप्ट किया है, आप कोई दूसरा ऑप्शन भी अडॉप्ट कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। आपको वैल्यू सेम ही मिलना है, बस आगे पीछे वैल्यू मिलेगी। तो u2 से इक्वेशन नंबर 5 से हमने u2 का मान निकाला जो कि u1 के टर्म्स में आ रहा है, और यहाँ पर हमने u1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसमें 102 जोड़ के उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास 76.5477 वैल्यू आ रही है। अब हमारा कौन सी वैल्यू बची है, श्रेयांश बताएंगे। अब बताओ कौन सी वैल्यू आपकी बची है। रोहित लोनारे बताओ कौन सी वैल्यू बची हुई आपकी क्वेश्चन में, म्यूट करके बताओ बेटे। सर u3 बचा ना बेटे। देखो u1 हो गया, u2 हो गया, u4 हो गया, u4 भी हो आपका गया। u3 बचा। तो देखो कौन सी इक्वेशन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान होगा। तो मैंने 6 को यूज किया, आप और भी किसी को यूज कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। तो देखिए जनाब बेटे, u3 का मान आ रहा है क्योंकि सेपरेट हमने पहले कर दिया है। 6 को दिया रहा है 1/2 ऑफ u1 प्लस 1/2। तो इस तरह से आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास ये लास्ट पार्ट में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। This is about the finite difference method of solving the Poisson equation. Thank you very much. आप किसी का कोई स्क्रीनशॉट बचा हो लेने का तो हमसे बोल सकता है। मैं स्लाइड को वापस कुछ सेकंड आपका बचा है, आज की क्लास में मैं शेयर कर सकता हूँ। सर थोड़ा इसके पिछले वाला वो दिखा पिछले दीजिए। वाला कर देता हूँ बेटे। ओके, ये रहा इसका पिछले वाला, बोलते जाइए। यस सर। सर स्लाइड नंबर 3। यस सर। इसके पीछे वाला भी ले लीजिए। अरे यार बेटा रुक जाओ, सॉरी ये आगे बढ़ गया, सॉरी पीछे बढ़ना है अपने को। यहाँ थे अपन, अब इसके पीछे जा रहे हैं अपन, सॉरी। हाँ ये था इसके पिछले वाला जिसमें हमने u3 निकाला था और इसके पहले u2 निकाला था। इसके कैलकुलेशन यहाँ पर किए हुए हैं। करो इसके पीछे वाला। देख लिया ये सचिन, अजय, श्रेयांश? यस सर हो गया। चलो सर पेज नंबर 3 निकाल दीजिए बस अभी। हाँ जा रहा हूं, मैं उसी को बता रहा हूँ। ये रहा, और पीछे करना है 3 नंबर। यस सर 3 नंबर। ठीक है बेटा, जा रहे हैं अपन पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये 4 नंबर पेज था, इसके पहले ये 3 नंबर है बेटा, ये रहा 3 नंबर। और पीछे जाना है, एक पेज और है, फिर इंडेक्स पेज आएगा। अब इसको सभी लोग कॉपी में लिखेंगे
क्लास के बाद और रिकॉल करेंगे और इस तरह का और भी क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करेंगे। ये इस बार की एटीकेटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था, पॉइसन इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा गया है। हो सकता है इस बार लाप्लास इक्वेशन आ जाए आपको